Welcome you all for this lecture series on Tadvidya Sambhasha Parishat. The topic which is running over here for last couple of weeks is on Siddhisthan. So we are at the chapter of 11th, which will be dealt by Vaidya Abhijit Saraf. Sir will be joining very shortly and the session will run. And tomorrow and day after tomorrow again Vaidya Abhijit will continue with 12th chapter and he would finish it. So that is by Wednesday we are supposed to complete our portion. From my part, the topic of Shiroroga Prakarana from Trimarmiya Siddhi will be on Thursday, and Friday we have a concluding session wherein a senior most professor of Samhita Siddhanta, Vaidya J.R. Joshi, will be addressing as a zest with the importance of Siddhisthan. With this, a short information of upcomings. Very pleased to have you all with us. Vaidya Abhijit Saraf will join shortly and he'll begin with his session. Thank you. Stay tuned to Tadvidya Sambhasha Parishat YouTube channels, where most of the lectures on various concepts of Ayurveda with the syllabus pro forma of CCM from first year to PG studies have been uploaded. Still, the work is going on. Many more topics are yet to be uploaded, but whatever is available can be accessed freely through YouTube channel. Please log into Tadvidya Sambhasha Parishat YouTube channel and you can access so many video lectures by various scholars of Ayurveda and faculties from various institutions. Yes. As we had told in the beginning that the editing process of each class video will be done precisely, and the edited video link will be shared with you all, which will have lifetime access, which takes time for editing because a lot of disturbance in between, and we are trying max to do it as early as possible, and we are sharing. So far I think 5 chapters have been shared with you all, and the remaining will be edited every minute, and it will be shared and uploaded to the YouTube channel, and the link will be shared with you only, and it is a closed link, requesting all the participants of this event to not to share the link to anyone. They cannot open it, and please keep the things secret as we have kept. You have paid for it and you have attended. You have a right to listen, but don't give your links to others. Thank you one and all. Welcome you, sir. So you can start your session. Yes. So I'm sorry, extremely थोड़ा लेट हो गया. No problem. चलो शुरू करते हैं. नमस्कार. ओके सर. हाँ. नमस्कार ब्रह्मदक्षाश्व देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश वेचरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः. सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्. आप सभी का फिर से एक बार यहाँ पे स्वागत है. आज हम चरक संहिता के सिद्धिस्थान का 11वां अध्याय 11वां अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं. 11वां अध्याय अथातः फलमात्रा सिद्धिं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान अत्रेयः. जो 10वां अध्याय हुआ, 10वां अध्याय का नाम बस्ती सिद्धि था. इसके बाद फलमात्रा सिद्धि नाम का अध्याय का व्याख्यान करने वाले हैं. व्याख्यास्यामः क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि व्याख्यान नाम की तंत्र युक्ति है, और तंत्र युक्ति व्याख्यान की जो है उसका अर्थ है कि जो हमारे बुद्धि के परे है, मतलब सर्वसामान्य जो उसके बुद्धि के ऊपर का जो भाग होता है, मतलब उसके बुद्धि के परे जो विषय होते हैं उसको वर्णन करने की तंत्र युक्ति को व्याख्यान ऐसा कहा जाता है. और हर जगह अहम व्याख्यास्यामः, वयम व्याख्यास्यामः बहुवचन है. ये व्याख्यास्यामः क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रतिसंस्कर्ता का सूत्र है. ग्रंथ में जहां जहां पर
लिट प्रयोग होता है, परोक्ष भूतकाल का प्रयोग होता है, वहां पर वो सूत्र प्रतिसंस्कर्ता का सूत्र होता है। इसलिए मूल अग्निवेश तंत्र में शायद ये अध्यायों के नामकरण नहीं होंगे। ये अध्याय के जो नाम है सभी चरक संहिता के, ये बाद में चरक ने जब संस्कार किया उसमें है। अब आप कहोगे कि मैं कहां से बोल रहा हूं, तो ये डलन की जो टीका है सुश्रुत की, उसके पहले ही सूत्र के टीका में डल्लन ने ये विस्तार से वर्णन किया है कि प्रतिसंस्कर्ता सूत्र क्या होता है। तो इसलिए ये जो प्रथम दो सूत्र होते हैं, अतः तो फल मात्रा सिद्धिम व्याख्यास्यामः वगैरह, ये संस्कर्ता के सूत्र है, ना ग्रंथकर्ता के सूत्र ये नहीं है। गुरु सूत्र भी नहीं है और शिष्य सूत्र भी नहीं है, एक ही सूत्र भी नहीं है। तो ये संस्कर्ता के सूत्र है। और सिद्धि स्थान ये सबसे बाद में खंडित हुआ था, इसलिए उसका वर्णन दृढ़बल ने किया, इसलिए शायद दृढ़बल ने नामकरण इनके किए होंगे। ये सभी पता होना चाहिए हमें जब हम ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। और जैसे हमारा अभी तक हुआ था कि हम पहले पूरा अध्याय का पठन कर लेंगे और फिर बाद में उसके अनुभवों के बारे में बताएंगे। तो इस अध्याय में फल मात्रा सिद्धि इसका नाम है, और इसका अर्थ ऐसा है कि प्रथम अध्याय में चक्रपाणि ने टीका में ऐसा लिखा है कि पहले कुछ अध्यायों में हमने बस्ती के विधि का वर्णन किया और उसमें प्रयुक्त अनेक विध वनस्पतियों का, वामक वनस्पतियों का, विरेचक वनस्पतियों का हमने उल्लेख किया। लेकिन अब जो कुछ ऐसे फल हैं जो वमन के लिए या शोधन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उनकी सिद्धि के लिए यह अध्याय हम वर्णन करते हैं। दूसरा विषय इस अध्याय में है कि पशुओं के लिए जो बस्ती की विधि वर्णन की है वो संक्षेप में हमें पता होनी चाहिए। वैसे तो पशु आयुर्वेद ये हमारा अधिकरण नहीं है, हम केवल मनुष्यों के शरीर के ऊपर चिकित्सा करते हैं, लेकिन प्रसंग तंत्र युक्ति से हमें उस वैद्य को अगर अत्यधिक अवस्था में किसी पशु की चिकित्सा करने का समय आ गया तो उसको बेसिक नॉलेज उसका होना चाहिए। इसलिए पशुओं में जो वस्तु चिकित्सा की जाती है उसका भी संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। तृतीय विषय है सदातुर जो होते हैं उनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ऐसा ये 3 विषयों का, 3 अधिकरणों का ये एक अध्याय है। 3 उप अधिकरण इसमें है, लेकिन फलों का विषय सबसे पहले आया है, इसलिए फल सिद्धि ये उसका नामकरण किया है। अब हम अध्याय की शुरुआत करेंगे। भगवंतम उदार सत्व धी श्रुति विज्ञान समृद्धम अत्रिजम। ये भगवंत से समृद्ध तक ये जो विशेषण है ये अत्रिज को है। अत्रिज इसका अर्थ अत्रेय, अत्रि के उदर में जन्म लिया है, अत्रिज अत्रि के घर में जन्म लिया है, इसलिए उसको अत्रिय, अत्रिज या अत्रेय ऐसा नामकरण है। फलवस्तुत्व निश्चय मुनयः अभ्युपागम। क्या हुआ कि कुछ वैद्य या कुछ मुनि एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते करते फल बस्ती वरत्व मतलब फल और बस्ती इनमें कौन श्रेष्ठ है इसकी चर्चा के समय इनमें सविवादः, इनमें विवाद उत्पन्न हो गए। अंतिम निर्णय तक वो नहीं आए, इसलिए जो भगवंत है मतलब भगवान की तुलना में जैसे बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति है, उदार सत्व जिनका चित्त ये विशाल बुद्धि है, उदार चित्त है, धी श्रुति विज्ञान जिनकी धी भी उदार है, विशाल ग्रहण शक्ति है, श्रुति धारणा शक्ति भी बहुत अच्छी है, शास्त्र संपन्न है और विज्ञान संपन्न भी है, ऐसे अत्रिजम अभ्युपागमन, ऐसे अत्रेय के पास ये सभी मुनि आ गए। कौन थे वो मुनि? भृगु कौशिक काप्य शौनकाः सपुलस्त्य असित गौतमादयः। तो भृगु ऋषि, कौशिक ऋषि, काप्य ऋषि, शौनक ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, इन पुलस्त्य ये जो ऋषि है इनके ऊपर मेरा एक आर्टिकल है। पुलस्त्य नाम का 2-3 जगह पे आयुर्वेद में संदर्भ मिलता है। एक चरक संहिता के प्रथम अध्याय में भी जो रोग नाशना के लिए जो आयुर्वेद उत्पत्ति के लिए जो संभाषा हुई है उसमें भी पुलस्त्य ऋषि उपस्थित थे, और यहाँ पे भी पुलस्त्य का चरक में दूसरा उल्लेख यहाँ पे मिलता है।
ऐसा सुश्रुत और वाग्भट में भी 2-3 जगह पे संदर्भ आए, तो उनके ऊपर भी मैंने आर्टिकल लिखा है, जल्दी वो प्रसिद्ध होगा। असित गौतमादय, और असित गौतम नाम के मतलब जो कृष्ण रंग के ऐसे गौतम ऋषि थे, ऐसे, क्योंकि गौतम दूसरे तो है, जो न्याय दर्शन के जो गौतम ऋषि है वो अलग है, ये असित गौतम है, मतलब कृष्ण वर्णी गौतम ऋषि। कतमत प्रवरम फलादिशु मृतम अस्थापन योजना स्वीति, और वो प्रश्न उन्होंने पूछा अत्रे जी से कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ फल है जो अस्थापन बस्ती के लिए योग्य है। शोधन द्रव्यों में से ऐसा कौन सा फल है जो अस्थापन बस्ती के लिए, फल बस्ती श्रेष्ठता के निर्धारण में फल बस्ती के लिए ऐसा कौन सा द्रव्य सबसे उत्तम है, वो हमें बताइए। तो आत्रेय जी ने उनको कहा होगा कि पहले आपका जो विवाद हुआ वो मुझे बताइए क्या क्या हुआ। अब आपको प्रश्न आएगा कि ये इतिहास क्यों बता रहे हैं, चिकित्सा के ग्रंथ में इतिहास का क्या मायना है। तो चक्रपाणी ने टीका लिखी है, इस सूत्र की टीका में चक्रपाणी कहते हैं, इतिहासः च संहिता धर्मतया ग्रंथे उज्जता उपदर्शनार्थम च क्रियते एव। संहिता रूपी जो धर्म ग्रंथ है, धर्म मतलब आचरण, तो आचरण का ये ग्रंथ है, इसमें इतिहास क्यों वर्णन किया है, तो वो पूज्यता के लिए, मतलब आदर भाव उत्पन्न होने के लिए, और उपदर्शनार्थम उस विषय का शुरुआत से ज्ञान होने के लिए यहाँ पे इतिहास का उल्लेख ग्रंथ में किया जाता है। नहीं तो एक चिकित्सा का ग्रंथ है, चिकित्सा के ग्रंथ में इतिहास का क्या काम, पर इसका ये उद्देश्य दो है, एक पूज्यता और दूसरा उपदर्शनार्थ। तो उनके जो विवाद हुए थे, तो वो उन्होंने अपने अपने मतों का प्रस्थापना आत्रेय जी के सामने की। क्या की वो, तो कफपित्तहरम वरम फलेषु अथ जीमूतकम आह शौनकाः। जो शौनक ऋषि थे उन्होंने कहा कि आस्थापन बस्ती में जो जीमूतक का फल है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कफ पित्त का नाश करता है। उसके बाद आगे मृदु वीर्यतया अभिनत्ति तत्शकृतियाह नृपो अथ वामकः। लेकिन वामक नाम के राजर्षि, जो राजा थे, नृप थे, लेकिन ऋषि थे, मतलब साइंटिस्ट थे, आयुर्वेद के शास्त्रज्ञ थे, ऐसे वामक राजर्षि ने कहा कि नहीं, आप जो कह रहे हो कि जीमूतक फल ये आस्थापन के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मृदु वीर्य का है, इसलिए वो शकृत का भेद नहीं कर पाता, शकृत का भेद नहीं कर पाएगा। तो उनका मत फिर क्या है, मतलब उन्होंने पहले खंडन किया, इनका शौनक ऋषि का खंडन किया, अब अपने पक्ष के कटुतुंबिम अन्य तो उत्तमम वमने दोष समीरणम तत्। तो वो कह रहे हैं कि कटुतुंबी मतलब इक्ष्वाकु, ये जो वमन में सबसे उत्तम है, और दोष समीरणम, दोष और वायु इन दोनों का बाहर निकालता है, इसलिए वो श्रेष्ठ द्रव्य है। आगे लेकिन गौतम ने उसका खंडन किया कि तद अवृष्यम अशैत्यम तीक्ष्णता कटुतौषादिति गौतम अब्रवीत। तो गौतम ऋषि ने कहा कि नहीं, वो उष्ण तीक्ष्ण कटु और रुक्ष होने के कारण अवृष्य है, और पौरुष शक्ति का वो ह्रास करता है, इसलिए वो योग्य नहीं है। तो वो कौन है फिर, उनका पक्ष क्या है, कफपित्त निबर्हणम परम तच धामार्गवम इतिम अन्यत। तो वो कह रहे कि जो कफपित्त का नाश करने वाला श्रेष्ठ द्रव्य है, जो धामार्ग नाव का द्रव्य है, वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन आगे फिर बड़िश कह रहे तद अमन्यत वातलम पुनर्बड़िशो ग्लानिकरम बलापहम। तो बड़िश ऋषि कहने लगे कि नहीं, धामार्गव का उपयोग किया तो वात वृद्धि करता है, ग्लानि निर्माण करता है, बल का ह्रास करता है, इसलिए वो योग्य नहीं है, अमन्यत, वो श्रेष्ठ नहीं है। उटजम प्रशंसंस च उत्तमम न बलघ्नम कफपित्तहारी च। तो उन्होंने अपना पक्ष स्थापना की कि उटज का फल सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बल नाश नहीं करता, और कफपित्तहारी, कफपित्त का भी नाश करता है, इसलिए उटज का फल जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन फिर काप्य ने उनका खंडन किया कि नहीं, अति विज्जलम और्ध्वभागिकम पवन क्षोभिच काप्य आहत, कि कुटज का जो फल है वो अति विज्जल होने से ऊर्ध्वभागहर है, बस्ती में प्रयुक्त किया जाए तो वो व्यापक उत्पन्न कर सकता है और पवन क्षोभी वायु को विकृत कर सकता है,
इसलिए वो आस्थापन उसका ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने फिर अपना पक्ष रखा काप्य ऋषि ने कि कृतवेदनम आह वातलम कफपित्तम प्रबलम हरे रिधि, कि कृतवेदन श्रेष्ठ है क्योंकि वो वातशामक है और प्रबल कफपित्त का भी नाश करता है। लेकिन भद्रशौनक फिर से कहने लगे, तो दास साधु, क्या आप जो कह रहे हो कि कृतवेदन श्रेष्ठ है ये भी योग्य नहीं है। फिर क्योंकि वो कटुकम च अति बलग्नम इत्यपि, क्योंकि कृतवेदन ये कटु रस का है और अति बल नाश करता है, इसलिए भद्रशौनक कह रहे कि कृतवेदन ये ठीक द्रव्य नहीं है। इति तद वचनानि हेतुभिः सुविचित्राणि निशम्य बुद्धिमान प्रशंसंस फलेषु निश्चयं परमं च अत्रि सूतो अब्रवीदत इदम। इन सभी का विचार, तद वचनानि, इन सभी के वचन जो विचित्र है, मतलब नानाविध प्रकार के वचन है और हेतु के साथ बोल रहे हैं। इन सभी के वचनों को कुछ ना कुछ बेस है। वो ऐसा नहीं कह रहे कि मेरे मन में आया और मैं कहने लगा, ऐसा नहीं है। जो कह रहे हैं उसको हेतु भी बता रहे हैं। इसलिए ये बुद्धिमान है सभी। इन सभी बुद्धिमान व्यक्तियों का ये वचन सुनकर आत्रेय जी ने उनकी प्रशंसा की कि आप जो कह रहे हो आपने बहुत अच्छा किया, मतलब उनका निराश नहीं किया उन्होंने। नहीं आपका गलत है, ऐसा कैसे बोल रहे हो, ये गलत है, गलती आपकी, चलो जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं कहा। उनकी पहले प्रशंसा की, क्योंकि आत्रेय कैसे थे, आत्रेय के बहुत सारे विशेषण हमें कहीं ना कहीं मिलते हैं। तो आत्रेय भूतेषु अनुक्रोशम थे। आत्रेय जी का एक उपमा दी आई है कि वो भूतेषु अनुक्रोशम थे, सभी प्राणी मात्राओं पर प्रीति भाव से और दया से वो रहते थे। इसलिए उन्होंने इन सभी का वचन सुनकर भी उनका खंडन नहीं किया। उन्होंने पहले तो उनकी प्रशंसा की कि आपने अच्छा कहा, आपने कोई बात नहीं, अच्छा कहा, लेकिन कौन सा फल श्रेष्ठ है उसके लिए मैं बताता हूं क्या कौन सा फल श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा फल क्यों ऐसा कह रहे, फल दोष गुणान सरस्वती प्रति सर्वैरपि सम्यक ईरिता। जो आपके मुख से जो सरस्वती का ईरण हुआ है, मतलब वाणी का जो उगम हुआ है, सरस्वती का अर्थ चक्रपण में वाक ऐसा दिया है, तो इस आपकी जो वाणी से फल के दोषों गुणों का जो विचार प्रकट हुआ है वो योग्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं। न तो किंचित अदोष निर्गुणम गुण भूयस्तुम अतो विचिंत्यते। ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है कि जिसमें केवल गुण है, दोष नहीं है, ऐसा एक भी द्रव्य नहीं है। क्योंकि सभी द्रव्यों में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो पूरा दोष युक्त हो या पूरा गुणवान हो, अपितु सभी द्रव्यों में कुछ गुण और कुछ दोष होते ही होते हैं। इसलिए गुणों की अधिकता की दृष्टि से अब उनका विचार करेंगे। गुण भूयस्त्व अतः विचिंत्यते, तो उनका जो गुण भूयत्व है, जिसमें ज्यादा गुण है, उसका विचार हम करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं, अब देखिए, इसको कहते हैं जो कृतकर्मा होता है वही इस प्रकार का विचार प्रकट कर सकता है। जिसने कई प्रकार की बस्ती दी है, कई द्रव्यों के ऊपर बस्ती दी है, ऐसा ही वैद्य इस प्रकार का निर्णय कर सकता है। वो क्या कहते हैं, सभी द्रव्य योग्य है, सभी द्रव्य आप उपयोग कर सकते हो, पर हर एक की अवस्था है। कौन सी अवस्था है, यह पुष्ट हितागरागरी हितम इक्ष्वाकुतु मेहिने मतम उडजस्य फलम हृदयमये प्रवरम कोट फलम च पांडुषु उदरे कृत वेदनम हितम मदनम सर्वगद अविरोधितु। वो कह रहे कि कुष्ठ में देवदारी सबसे श्रेष्ठ है, गरागरी न देवदारी सबसे श्रेष्ठ है, इक्ष्वाकु प्रमेह में श्रेष्ठ है, उटज का फल हृदय विकार में श्रेष्ठ है, कोट फल मतलब दामार्ग ये पांडु रोग में श्रेष्ठ है, कृतवेदन ये उदर व्याधि में श्रेष्ठ है, और मदन फल सर्व व्याधियों में अविरोधी है, सभी व्याधियों में वो हितकर होता है। मतलब इन्होंने सभी द्रव्य उस अवस्था में देकर देखे होंगे और शोधन के लिए, अस्थाव बस्ती के लिए उस व्याधि में ये रोग ये द्रव्य हितकर है। अब मदन सर्व रोग में क्यों विरोधी नहीं है, तो वो मधुरम स कषाय तिक्तकम तद अरुक्षम स कटु उष्ण विज्जलम। मदन फल जो है वो मधुर कषाय तिक्त रस युक्त है, किंतु रुक्ष नहीं होता, किंचित स्निग्ध होता है, कटु उष्ण और पिच्छिर होता है। कफ पित्त आशुकारी अपि अनपायम पवनानुलोमी च, कफ पित्त का नाश करता है, आशुकारी कार्य करता है, अनपायम कार्य कर भी किसी प्रकार का व्यापक उत्पन्न नहीं करता,
और पवन अनुलोमी, वायु को अपने अपने गति में घुमाता है। उसका अनुलोम का अर्थ केवल अधो मार्ग से गमन करना ऐसा नहीं है। वायु अनुलोमन का अर्थ जिसका जो मार्ग है उस मार्ग से उसकी गति करना, मतलब उदान ऊर्ध्व गति का है, अपान अधो गति का है, समान उसी संचार में क्षेत्र करता है, व्यान सर्वगति में है, प्राण अधो ऊपर से अंदर आता है। तो उनकी जो जो गति है उन सभी गतियों में प्रेरित करने वाला, इसको अनुलोमन कहते हैं। फल नाम विशेषतु अतः लभते अन्येषु फलेषु सस्तु अपि। तो बाकी सभी द्रव्यों के फल होकर भी फल ये जो पर्याय है ये केवल मदन फल के फल के लिए ही हमने उपयोजित किया है, इसलिए मदन फल सभी आस्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ है, ऐसा निर्णय आत्रेय जी ने कहा। गुरुणा इति वचस्य उदाहृते मुनि संघेन च पूजिते ततः। अब ये गुरु जी का वचन सुनने के बाद सभी मुनियों के संघ ने उनका पूजा की, उनको मान्यता दी कि आप जो कह रहे हो सही है। प्रणिपत्य मुदा समन्वितः सहितः शिष्य गुण अनुपृष्टवान। और फिर उनको नमस्कार करके आनंदित होकर उन्होंने फिर अगला प्रश्न पूछा। उन सभी शिष्य के रूप में आए हुए मुनि ने आत्रेय जी को फिर अगला प्रश्न पूछा। सर्व कर्म गुणकृत गुरुणा उक्तो बस्ति ही ऊर्ध्वम अथ न इति नाभितः नाभ्य अधो गुदमत तो शरीरात सर्वथा कथम अपोहति दोषान। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कहा कि बस्ती ये जो कर्म है ये सभी कर्म करने वाली है, सभी गुणों से युक्त है, ऐसा आपने कहा, लेकिन बस्ती तो नाभि के ऊर्ध्व में नहीं जाती। नाभितः ऊर्ध्वम अथ न एति। नाभि से ऊर्ध्व बस्ती तो नहीं जाती। और नाभि अधो गुदमतः सशरीरात सर्वथा कथम अपोधि। और नाभि के अधो प्रदेशी पाद आदि जो प्रदेश है उसमें भी बस्ती नहीं जाती, तो वो सर्व शरीर में जाने वाले रोगों का कैसे विनाश करती है। तद गुरु अब्रवीत इदम शरीरम तंत्रयते अनिलः संग विघातात्। इन गुरु जी ने फिर आत्रेय जी ने प्रवचन कहा, ये जो शरीर है, इस शरीर की जो तंत्रणा है, सब कार्य चलता है वो वायु के कारण चलता है। और वो संग विघाता, जब शुद्ध होता है तब वायु सभी शरीर की तंत्रणा करता है। केवल एव दोष सहितो वा स्व आशयगाः प्रकोपोपमायाति। जब वो प्रकोपित होता है तो स्व आशयगाः, अपने खुद के आशय में, पक्वाशय में जो वो प्रकोप होता है तब एक तो खुद एकल केवल वात का प्रकोप होता है, या दोष सहित मतलब कफपित्त के अनुबंध से भी उसका प्रकोप होता है। तम पवनम सपित्त कफविट्कम शुद्धि करो अनुलोमयति बस्ति। वो जो पवन है वो पित्त कफ और मल के साथ शुद्धिकरण करके बस्ती क्या करती है, उस पवन की मतलब वायु की पित्त कफ और मल के साथ शुद्धि करके फिर उसका अनुलोमन करती है बस्ती, ये उसका कार्य है। अब अनुलोम का अर्थ मैंने बताया, अपनी अपनी गति में जिसकी जो गति है उस गति में उसको प्रक्षेपित करना, इसको अनुलोमन कहते हैं। सर्व शरीर गाहा च गद संघातः तत्प्रशमात् प्रशांति उपयाति। और इसके कारण सभी दोष और विशेषता वायु अनुलोम होने के कारण सर्व शरीर में जो निर्माण हुए ऐसे व्याधि है उनका भी प्रशम हो जाता है। इसलिए बस्ती ये सर्व शरीर में गत व्याधियों का विनाश करती है। हमने देखा कि मर्म, अपने 9वें अध्याय में देखा होगा सूत्र कि मर्म का परिपालन करना है आपको, मर्मगत व्याधि की चिकित्सा करनी है, तो बस्ती जैसी चिकित्सा नहीं। एक सीरियल थी, आपको याद होगी कि सीरियल का नाम था जस्ती जैसी कोई नहीं, बराबर है। तो हम वैद्य कहते हैं बस्ती जैसी कोई नहीं, हमारी बस्ती जैसी चिकित्सा जो है उसके जैसी तांत्रिक चिकित्सा नहीं, क्योंकि वह सभी मर्मों तक जाकर चिकित्सा भी करती है। अब आगे ये अधिकरण यहाँ पे खत्म हुआ। अगले सूत्र में अभी 19 नंबर का सूत्र वो कहते हैं अथ अधिगम्य अर्थम अखंडितम धिया गज उष्ट्व गो अश्व अवि आज कर्म रोगनु। तो वो कह रहे हैं कि आपने जो बताया, जो विषय आपने बताया बस्ती के बारे में या फल विनिश्चय के लिए, वो हमने अधिगम्य अर्थम अखंडितम, पूरा बिना खंडित पूरा का पूरा विषय हमने अधिगम्य प्राप्त कर लिया, समझ लिया। अब हमें क्या प्रश्न पूछना है कि गज मतलब हाथी, उष्ट्र मतलब ऊंट, गो मतलब गाय, अश्व मतलब घोड़ा, अवी मतलब भेड़ क्या कहते भेड़, और अज मतलब बकरी, इनमें रोग नष्ट करने के लिए अपृच्छेदनम कौन सा कर्म है,
कौन सा कर्म ये इन प्राणियों में सभी रोगों का नाश करने वाला है? ऐसा उन्होंने आत्रेय से तीसरा प्रश्न पूछा। सच बस्तिम अब्रवीत, तो आत्रेय ने कहा कि वो कर्म मतलब बस्ती ही है। उन पशुओं में आपको बस्ती करनी पड़ेगी, तो बस्ती सभी उन पशुओं के रोगों का नाश कर देगा। तो अब्रवीत विधिम च तस्य आह, पुनः प्रश्न देता, फिर उन्होंने चौथा प्रश्न पूछा कि फिर इन पशुओं में जो बस्ती की विधि है वो हमें बता दीजिए। अब वो आनंद से कह रहे आत्रेय जी विधि बता रहे कि आज उरणो सौम्य गज उष्ट्रयो कृते गवाश्वयो बस्तीम उशंति माहिषम। तो उन्होंने कहा कि हे शिष्यों, हे सौम्य, गज और उष्ट्र में, हाथी और ऊंट में आपको अगर बस्ती देनी है तो जो बस्ती पुटक है वो आपको अज या उरण का लेना चाहिए। अज मतलब बकरी, उरण मतलब भेड़। तो भेड़ या बकरी का जो बस्ती है वो आपको गज और उष्ट्र में उसका उपयोग करना चाहिए। और गो और अश्व, गाय और अश्व में अगर आपको बस्ती देनी है तो आपको माहिष्गम, भैंस का बस्ती का उपयोग करना पड़ेगा। अज आविका नाम तू जरद गवो उद्भवम वदंती बस्तीम तद उपाय चिंतका। और अगर अजा और आवी, बकरी और भेड़ में आपको बस्ती देनी है तो आपको जरद गव मतलब वृद्ध बैल का जो बस्ती है उसका उपयोग आपको वहां पे करना पड़ेगा। ऐसा उपाय चिंतक की व्याख्या है गजादि बस्ती साधने दत्त चित्त कहा। जो बस्ती देते हैं, इन पशुओं में जो बस्ती देते हैं और बस्ती देते समय जो दत्त चित्त होते हैं उनको उपाय चिंतक ऐसा नामकरण आत्रेय जी ने किया है। अब आगे अरत्नीम अष्टादश षोडशांगुलम तथैव हि नेत्रम दशांगुलम क्रमात् गज उष्ट्र गो अश्व अवि आज बस्ती संधौ चतुर्थ भागे अपनयनम हितम वदेत। तो गज में 1 अरत्नी इतनी मात्रा का नेत्र होना चाहिए, उष्ट्र में 18 अंगुल का होना चाहिए, गो में षोडशांगुलम, अश्व में भी षोडशांगुल और अवि और अजा में दशांगुल इतना नेत्र की लंबाई होनी चाहिए। और चतुर्थ भाग 1/4 मतलब जो भाग है उसका चौथे भाग को गुदा में प्रविष्ट करना चाहिए। प्रस्थस्तु अजा अव्यो हो ही निरूह मात्रा गवादिशु द्वित्रिगुणम यथाबलम। तो अजा और अवि में, भेड़ और बकरी में जो बस्ती देनी है उसकी मात्रा 1 प्रस्थ है। और गो और अश्व आदि जो है उनमें उनके उस प्राणी के बल के अनुसार द्विगुण या त्रिगुण इतनी मात्रा में, 2 प्रस्थ है 3 प्रस्थ, इतनी मात्रा में निरूह देना है। निरूहम उष्ट्रस्य तथा अड़क द्वयम, उष्ट्र में, ऊंट में अगर निरोह देना है तो 2 अड़क इतनी मात्रा में देना चाहिए। और गजस्य वृद्धि स्तु अनुवासन अष्टमः, और गज में आपको 4 अड़क इतनी मात्रा में देना चाहिए। और उन सभी प्राणियों में अगर अनुवासन करना है तो उनकी जो निरोह की मात्रा है उसका 8वां भाग अनुवासन की मात्रा होनी चाहिए। मतलब बकरी भेड़ में 2 पल, घोड़े और मतलब अश्व और बैल में 4 या 6 पल, ऊंट में 1 प्रस्थ और हाथी में 2 प्रस्थ, वो 8वां भाग है। ऐसी बस्ती की मात्रा होनी चाहिए। अब आगे बस्ती के लिए द्रव्य बता रहे, कलिंग के मधुकम च पिंपरी वच्चा शतांबा मदनम रसांजनम हितानि सर्वेषु गुड़स सेंदवो द्विपंचम गुणम च विकल्पना त्वियम। इन पशुओं में जो बस्ती की विकल्पना करनी है उसमें आप द्रव्य क्या क्या उपयोग कर सकते हो। तो कलिंग का मतलब इंद्रियो, कुष्ठ, मधु मतलब मुलहटी, पिंपरी, वचा, सौंफ, मदन, रसंजन, गुड़, सेंधा नमक और दोनों पंचमूल, द्विपंचमूल मतलब बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, इनके क्वाथ से बनाई गई बस्ती सभी पशुओं के लिए हितकर है। गजे अधिका अश्ववट आशु अश्वकर्ण कहा स खादीर प्रग्रह शालतादजः तथा च पर्ण्यो नव शिग्रु पाटली मधुकसारः स निकुंभ चित्रकाः। तो अगर हाथी में देनी है तो इसमें हाथी के लिए बस्ती कल्पना बनानी हो तो सामान्य द्रव्यों के साथ क्या क्या देना है। तो अश्व, वट, अश्वकर्ण, अश्वत्थ, वट, अश्वकर्ण, खदीर, तालीश, प्रग्रह, प्रग्रह मतलब, प्रग्रह का अर्थ क्या है, अमलता, आरगवत, शाल तालज मतलब शाल और ताड़फल, इनके क्वाथ की बस्ती देनी चाहिए। तथा गौ में अगर बस्ती देनी है, गवाम गाय में देनी है तो पर्ण्यों, दोनों प्रकार की पर्णी मतलब उद्गपर्णी माशपर्णी,
धव, शिग्रू, पाटला, मधुकसार, निकुंभ, चित्रक, पलाश, भूतिक, सुरामवा, रोहिणी इनका कषाय गाय में बसी देने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। पलाश दंती सुरदारुक तत्रुण द्रव्यंती उक्ता तुरगस्य चादिका। तुरग मतलब घोड़े में अगर देनी है तो उसमें पलाश की छाल, दंती मूल, देवदारू, सुगंध तृण, द्रवंतवी ये द्रव्य अधिक मिलाकर बस देने चाहिए। आगे कह रहे खर उष्ट्रयो हो पीलू करीर करीर खादिराहा शम्यक बिल्वादि गणस्य च छदाहा। खर और उष्ट्र मतलब गधे और ऊंट में अगर बस देनी है तो पीलू फल, पीलू के बस्ती, करीर, खदीर, शम्यक, बिल्वादि, बिल्वादि जो गण है उनके औषधियों का योग करके बस देने चाहिए। अजा अविका नाम त्रिफला परुषकम कपित्त करकंदु तबिल्व कोलजम। और अगर अजा और अवी मतलब भेड़ और बकरी में देनी है तो त्रिफला की, परुष, कपित्त, करकंदु, बिल्व, कोल इन द्रव्यों को अधिक डालकर बस्ती देनी चाहिए। अब ये जो प्रश्न है कि इनको ये कैसे पता चला होगा, प्रश्न हमारे मन में ये आना चाहिए कि इन्होंने इसका वर्णन कैसे किया। तो इसका अर्थ ये है कि आत्रेय जी मनुष्यों के साथ पशु चिकित्सा भी करते थे और उन्होंने केवल चिकित्सा नहीं की, पशुओं में वो सफल बस्ती चिकित्सा भी करते थे और हर एक पशु में कौन से द्रव्य उपयोग या दो एक बस्ती या दो बस्ती देकर ये हो नहीं पाएगा। इसके लिए हमेशा निरंतर ये चिकित्सा करनी पड़ती है, तभी इसके स्पेसिफिकेशन तक कोई भी व्यक्ति जा सकता है। अब आगे वो कह रहे अथ अग्निवेशः सतत आतुरान नरान हितम च परपच्छ गुरु तदाह। अब अग्निवेश ने प्रश्न पूछा कि पूर्व प्रश्नों का पहला जो प्रश्न था वो कहने के बाद उन्होंने फिर से प्रश्न पूछा, अग्निवेश ने प्रश्न पूछा कि हे गुरु तदातुरः श्रोत्रिय राजसेवकः तथैव वेश्या स पुण्यजीवी। कि हे गुरु ने प्रश्न पूछा कि हे गुरु कौन व्यक्ति तदातुर होते हैं और फिर उनकी चिकित्सा क्या है। तो उसके पश्चात आत्रेय जी ने उत्तर दिया कि जो श्रोत्रिय है, वेद का अध्ययन करता है, तथैव वेद का अध्ययन करता है, उसके बाद राजसेवक मतलब राजा का सेवक जो है, तथा वेश्या देह विक्रय करने वाली जो स्त्री है वो, और पुण्यजीवी भी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, पुण्यजीवी चाहिए। इसका अर्थ है जो व्यापार उद्यम करता है, दुकानदार है, किसी प्रकार का दुकान चलाता है, ये चार रोगी तदातुर होते हैं। अब क्यों होते हैं इसका कारण बता रहे हैं। द्विजो ही वेद अध्ययन व्रत आन्निक क्रियादिभि देह हितम न चेष्टते। जो वेद पाठी होते हैं वो वेदों के अध्ययन, व्रतों के पालन, दैनंदिन नित्य कर्म में व्यस्त रहने के कारण अपने शरीर के कार्यों का और शरीर के हित की परवाह नहीं करते। नृप उपसेवी नृप चित्त रक्षणात् पर अनुरोधात् बहु चित्तनात् भयात्। जो राजा का सेवक होता है वो राजा के मनपसंद कार्यों में लीन रहने से, दूसरों की हुकूमत में सदैव उनके अंडर कार्य करने से, मतलब उनके शब्दों के अंदर वो रहता है, चिंतित रहने से और भय के कारण अपने शरीर की आवश्यक कार्यों का उपेक्षा करता रहता है। उनको कभी भी वेग आए तो भी वो वेग का निर्धारण नहीं कर पाता है। नृचित्त वर्तिनी उपचार तत्परा मृजा भी विभूषा निरता पणांगना। जो वेश्या है वो अपने ग्राहकों की संतुष्टि में व्यस्त रहती है, उनके मनोनुकूल चेष्टा आचरण में तत्पर रहती है और अपने शरीर को सजदजाती है, साज श्रृंगार में संलग्न रहती है और उसे अपने शरीर की चिंता का अवसर नहीं मिलता है। या चिंता का अर्थ मल मूत्रादि का वेग का धारण करना, इसका अर्थ लेना है। जो चौथा है तदा आसनात् अति अनुबंध विक्रय क्रय आदि लोभात अभी पुण्यजीविना। जो दुकानदार है वो हमेशा अपने गद्दी पर बैठे रहते हैं और लगातार होने वाली खरीदी जो होती है उसमें वो क्रिया विक्रय जो है उसमें व्यस्त होते हैं और वो लाभ के लोभ में फंस के अपने खाने पीने की और मलमूत्र के वेग की चिंता नहीं कर पाते हैं। सदैव ते ही आगत वेग निग्रहम समाचरन्ते न च काल भोजनम। ये चारों व्यक्ति जो उनका वेग आ गया है उसका निग्रह ही उनसे होता है और उनका काल भोजन नहीं होता, समय पर भोजन इन चारों व्यक्तियों का नहीं होता। अकाल निर्हार विहार सेविनो भवंती ये अन्येपि सदा तुरश्चये। और इनके जैसे अन्य भी कोई व्यक्ति है जो अकाल में भोजन करते हैं। यहाँ निर्हार का अर्थ मलादि निर्गम, जो अकाल में मल मूत्र का विसर्जन करते हैं,
अकाल में विहार करते हैं, अकाल में आहार सेवन करते हैं, उनको भी ये सदा तुरत्व उत्पन्न होता है, वो सदा आतुर ही रहते हैं। अब उसकी चिकित्सा क्या है वो बता रहे हैं। समीरणम वेग विधारणात् उद्धतम विबंध सर्वांग रुजाकरम विषक समीक्ष देशाम फलवर्तीम आदितः सुकल्पिताम स्नेहवतीम प्रयोजयेत्। अब वैद्य को क्या चाहिए कि उनके मल मूत्रादि के वेगों के रोकने से जो वायु उद्धत हुआ है, प्रकोपित हुआ है, उससे विद्बंध और संपूर्ण शरीर में रुजा उत्पन्न होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समीक्ष देशाम, इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करके अच्छी प्रकार से बनाई हुई फलवर्ती को घी में लिप्त करके उसको गुदा में प्रयोग करना चाहिए। स्नेहवतीम प्रयोजयति, उसको स्नेह में घोलकर फिर प्रयोग करना चाहिए। कैसे करनी है बसी? तो पुनर्नवा एरंड निकुंभ चित्रकान सदेवदारु त्रिवृतान निदिग्धिकान महांती मूलाने च पंचयानी विपाच्य मुत्ते दधिमस्तु संयुते ततैल सर्पे लवणे च पंचभिः विमूर्षितम बस्ति मत प्रयोजय निरूहितम धन्वरसेन भुजितम निकुंभ तैलेन ततो अनुवासे। सबसे पहले क्या करना है? तो वर्ती के बाद अब पंचमूला पुनर्नवादि निरूह देना है। उसका प्रयोग कैसे करना है कि फलवर्ती के बाद पुनर्नवादि वस्ती का प्रयोग करें। पुनर्नवा, एरंड, दंती, चित्र, इनकी मूल, देवदारू, सफेद त्रिवृत मतलब सफेद निशोत्तर, निदिग्धिका मतलब ब्रोती और बुरा पंचमूल के द्रव्यों को समान भाग में लेकर उनको अच्छे से विपाच्य मतलब उबाल कर मूत्रे दधि गोमूत्र दधि में पानी में डालकर उसका क्वाथ करना चाहिए। क्या करना है फिर? चतुर्थांश रहने पर उसमें फिर तैल, सर्पी, लवण और पांचों नमक का चूर्ण मिलाकर फिर उनको मत कर निरूहम बस्ती प्रयोजय, निरूह बस्ती देनी चाहिए। निरूह का सम्यक लक्षण उत्पन्न होने के बाद फिर धनवर जंगल पशु पक्षियों के मांसरस को उनको पिलाना चाहिए। और फिर बाद में सायंकाल में निकुंभ तैल से, निकुंभ मतलब दंती का क्वाथ, निकुंभ मतलब दंती, तो दंती के तैल से उनको अनुवासन करना चाहिए। बलाम सरासनाम बल फल बिलवत चित्रकान द्विपंचमूलम कृतमालकात् फलम यवान कुलत्थांश पचेत जलाडके रसश्च पेशेस्तु कलिंगकादिभिः ततैल सर्पे गुण सेंधवो हिता सदा तुराणाम बलम वर्ण वर्धनः। अब ये बलादी बस्ती है, तो बला, रसना, फल, बिल्व, चित्र, द्विपंचमूल, कृतमालक, इनके फल, यव, कुलत्थ, इनको एक आड़क जल में पचाकर विधिवत उसका क्वाथ करें। फिर उस क्वाथ में कलिंगकादि जो द्रव्य है उनका जो 23 श्लोक में दिए ना, 23 जो श्लोक है इस अध्याय का, कलिंग का मधुकम पिंपरी वचकताम व रसांजनम, ये जो बस्ती के द्रव्य है उन बस्ती के द्रव्यों का कल्क मिलाना चाहिए। फिर उसमें तैल, सर्पी, गुड़, सेंधव यथा योग्य मात्रा में डालना चाहिए और फिर उसको मत कर बस्ती तैयार करनी चाहिए। तथा अनुवास्य, इस बस्ती से क्या होगा? बल और वर्ण का वर्धन होगा। फिर उस निरूह के बाद फिर अनुवास्य मधुकेन सहितम फलेन बिल्वेन शतामया अपीवा, तो फिर बस्ती के निरूह बस्ती के बाद उनको फिर से धनवरस का भोजन करवाकर ज्येष्ठ मद, मदन फल, बिल्व और शताम्बा इनके कल्क से सिद्ध किए हुए तैल का अनुवासन करना चाहिए। सजीवनीयस्तु रसो अनुवासने निरूहणे च अलवणा शोरिता। शिशु आदि वृद्धजन हो गए तो उनमें उस बस्ती के जीवनीय गण का क्वाथ कल्क से सिद्ध किया अनुवासन बसे देना चाहिए और जीवनीय गण के क्वाथ में लवण डालकर निरूह देना चाहिए। न च अन्यत आशु अंग बल अभिवर्धनम निरूह बस्ते है शिशु वृद्धयो परम। ये जो जीवनीय गण की अनुवासन और जीवनीय गण के क्वाथ की लवण विरहित निरूह बस्ती जो है वो शिशु और वृद्धों में अंगवर्धन करने के लिए सबसे श्रेष्ठ द्रव्य, सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है। इसकी यहाँ पे यह अध्याय खत्म होता है। इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धि स्थाने फल मात्रा सिद्धे ही नाम एकादशो अध्याय। इस प्रकार से इस अग्निवेश निर्माण के हुए तंत्र में चरक संस्कृत किए हुए इस ग्रंथ के संहिता में जिसका दृढ़बल ने संपूर्ण किया हुआ ऐसा जो पहले अप्राप्त था ऐसा सिद्धि स्थान का फल मात्रा सिद्धि नाम का एकादशा अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ। इस अध्याय में 3 अधिकरण है। सबसे पहला अधिकरण है कि
फल सिद्धि कौन सी, आस्था में बसते लिए कौन सा फल श्रेष्ठ है। फिर उसमें उन्होंने हर एक द्रव्यों के अवस्था बताई और श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है वो भी बताया। दूसरा अधिकरण है कि पशुओं में बस्ती अगर देनी है तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, नेत्र अंगुल कितने होने चाहिए और कि कौन से द्रव्य का उपयोग करना चाहिए। और तीसरा अधिकरण है सदातुर कौन है और सदातुरों में चिकित्सा क्या करनी चाहिए। चिकित्सा में पहले फलवर्ग देनी है, उसके बाद पुनर्नवादि निरोह देकर फिर निकुंभ की अनुवासन देनी चाहिए, या बलादि निरोह देकर फिर जीवन बिलवादि शतामवादी तैल का अनुवासन बस देने चाहिए। और शिशु अगर वृद्ध हो तो जीवनीय गण का अनुवासन और जीवनीय गण के क्वाथ में लवण वर्ष करके उनकी बस्ती बनाकर उसका निरोध देना, ये सबसे अंगवर्धन करने के लिए श्रेष्ठ बस्ती है। ऐसा इन्होंने इस अध्याय में इतना पूरा वर्णन समग्र किया। अब मेरे अनुभव में पशुओं की चिकित्सा का जो विचार है उसमें मैंने 2 बार यह पशु चिकित्सा में बस्ती का उपयोग देते हुए देखा है और बस्ती की चिकित्सा करते हुए भी देखा है मैंने, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो स्टड फार्म है ऊना में, वहां पे ये जो घोड़े होते हैं उनको बस्ती दी जाती है और वो आयुर्वेदिक द्रव्यों से दी जाती है, ये मैंने देखा है। तो इतना मेरा अनुभव है। सदातुर में आज में जो सदातुर है उनमें सदैव लैपटॉप पे या मोबाइल पे रहने वाले, सदैव व्हाट्सएप देखने वाले, फेसबुक देखने वाले या सदैव किसी कार्य में लिप्त होने वाले, ये लोग भी सदातुर में आते हैं। ये सदैव चिंता करने वाले, जिनका आहार विहार ठीक से होता नहीं, जिनकी शिफ्ट ड्यूटी होती है, ये भी सदातुर में आते हैं। जो समय पर खा नहीं पाते, समय पर मल मूत्र का वेग विसर्जन नहीं कर पाते, जो आज हमारे मतलब मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इनके साथ रहने वाले, इनके जो गार्ड्स होते हैं या उनके पीए होते हैं, ये भी सदातुर में आ सकते हैं। जो नगर सेवक होते हैं, आमदार खासदार होते हैं, इनके भी साथ रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें सदैव अटेंशन में रहना पड़ता है। आर्मी में जो लोग होते हैं, तो आर्मी में भी अगर आप बॉर्डर पे हो तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि मुझे मल का वेग आ गया है, जरा 2 मिनट में जाके आता हूँ, तो ये हो नहीं सकता। तो वो भी मगर उनका इसका जो धारण हो रहा है, क्या कहते हैं, मलों का, तो वो सदातुर में आ सकते हैं। तो ये अध्याय बहुत सुंदर अध्याय है, छोटा सा अध्याय है पर बहुत सुंदर अध्याय है। अगर आपको कुछ प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हो। अगला जो अध्याय है 12वां, ये बहुत बड़ा अध्याय, इसको हमें 2-3 दिन लगेंगे, फिर ये सिद्धि स्थान का अध्ययन हमारा पूरा हो जाएगा। नमस्ते सर। हाँ सर, ये फलवर्ती आयुर्वेदिक कभी सुना नहीं है। क्यों? इसके बारे में कुछ बताएंगे प्लीज। फलवर्ती का अर्थ है कि जो नानाविध द्रव्यों से बनाई गई वर्ती है। इसका उपयोग होता है सर, क्योंकि सपोजिटरीज तो बहुत मतलब यूज होती है, बट हाँ फलवर्ती का बनाते हैं ना, वर्ती बनाते हैं, वर्ती का उपयोग भी करते हैं चिकित्सा में, बहुत लोग करते हैं। और वर्ती बनाने की विधि भी है। वैशेष कल्पना में एक सेपरेट चैप्टर है वर्ती के ऊपर। संतोष खंडल जी का वैशेष कल्पना का ग्रंथ है, रसव शास्त्र वैशेष कल्पना का, उसमें आप वर्ती का जो भाग है, तो वर्ती कैसे कितनी मात्रा में बनानी है, कैसे बनानी है, और वो सपोजिटरी की तरह ही रखनी पड़ती है। और ये इसका संदर्भ खुद ही बनानी पड़ती है सर, कोई कंपनी हाँ, नहीं ये मिलती नहीं है, यहाँ में बनानी पड़ती है। और आसान है बनाना, द्रव्यों का कल बनाना, स्नेह डालना उसके में बीच में, वर्ती की जैसे सपोजिटरी का स्वरूप होता है उसकी तरह से वर्ती का उसको रूप देना और धूप में सुखाना उसको, और फिर स्नेह में लिप्त करके गुदवागी रख देना, तो वो अनुलोमन कर देता है। थैंक यू। अच्छा प्रश्न पूछा आपने, बहुत कम लोग करते हैं आजकल, करते हैं लोग पर बहुत कम लोग करते हैं। पर सर साउथ में कभी देखा ही नहीं, कोटकल में भी नहीं देखा हॉस्पिटल में, और अभी तक तो महादेवन सर के हॉस्पिटल में भी नहीं देखा। मैं इसका प्रॉब्लम बताऊं क्या हुआ है जी। थोड़ा सा गुस्सा आएगा, कुछ लोगों को गुस्सा आएगा मेरे वक्तव्य के ऊपर। साउथ में क्या हुआ है, वाग्भट का प्रचार ज्यादा है जी। चरक पढ़ते नहीं ये लोग, और चरक न पढ़ने से, मतलब मैं वाग्भट कम है ऐसा नहीं कह रहा हूं, वाग्भट तो ग्रेट है। मतलब मैं हमेशा कहता हूं
कि आज तक के इतिहास में चरक पूरा का पूरा जिसको समझा है वो केवल वाग्भट है, लेकिन केवल वाग्भट का अध्ययन होने से, चरक सुश्रुत का अध्ययन न होने से कई चीजें पीछे रह गई। उसमें ये वर्ती चिकित्सा भी। थैंक यू। तो आपके प्रैक्टिस में अगर शिशु आपके प्रैक्टिस में आते हैं और उसके माता पिता आपकी इस बात सुनते हैं, तो जीवनीय गण, हम जीवनीय गण के जो द्रव्य नहीं मिलते वो छोड़ दीजिए। जितने द्रव्य मिलते हैं उसमें बाकी के जीवनीय द्रव्य, द्राक्षा, विदारी, पयस्त्या, ये द्रव्य मिलते हैं, तो उनका योग योजना करके अगर उसके अनुवासन और निरूह उनके वय के अनुसार मात्रा में और प्रमाण में देकर आपने दी, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है कि अंगवर्धन करने के लिए ये बहुत अच्छी है। मैंने भी पहले मतलब बहुत दिन के बाद पढ़ा, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं भी करके देखने वाला हूं अभी। निरूह और अनुवासन, और निरूह अनुवासन कैसा है, सुबह निरूह देना है और शाम को अनुवासन देना है उसी दिन। अगर कुछ प्रश्न नहीं होंगे तो रुक जाएंगे फिर आगे। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। सर, जैसे यहाँ पर कहा कि शिशु और वृद्ध में लवण वर्जित बस्ती बल वर्धन और शरीर वर्धन के लिए है, तो सर लवण वर्जित क्या मध्य वय वालों के लिए भी बल वर्धन के लिए प्रयोग कर सकते हैं क्या? नहीं, शिशु और वृद्धों में सुकुमारत्व होता है, उनमें अगर आप लवण की मात्रा गलती से भी ज्यादा हो गई तो विदाह आदि लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, व्याकुल उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए सुकुमारत्व के कारण उनमें लवण देना नहीं। मतलब बस्ती जब हम प्रयोग करेंगे तो एकदम अत्यल्प मात्रा में, तो अत्यल्प बोलेंगे तो भी लोग गलती से ज्यादा डाल सकते हैं, इसलिए लवण देना ही नहीं। यही एकमेव सुकुमारत्व, यही एकमेव कारण, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू सर। चलिए, अगर कुछ नहीं बताओ, कल मिलेंगे फिर 9-9:30 बजे मिलेंगे कल भी। 9:30 ये मेरे लिए अच्छा समय है, क्योंकि मैं थोड़ा क्लिनिक से लेट आता हूँ तो तब समय थोड़ा इधर उधर होता है। 9:30 बजे हम कल मिलेंगे, चलेगा?